A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the theoretical concept related to the chapter number 6 of your class 12 accountancy syllabus, that is in dissolution of partnership firm. In this chapter, firstly we discussed what is the meaning of dissolution of partnership firm. After this, we discussed about the difference between the dissolution of partnership firm and dissolution of partnership, which is also known as a reconstitution of partnership firm. As well as we can see that in the last video, the following accounts must be opened at the time of the dissolution of the partnership firm, like realization account, partners capital account, partners loan account, loan given by firm to partners account, at last we prepared cash or bank account. And we also discussed a lots of the journal entries related to the realization account, which are as follows. The first will be a closing of assets account, second will be a closing of liabilities account, third will be a realization of the assets, fourth is a payment of outside liabilities, as well as the various case related to the realization expenses. So after passing all those entries, at last we close the realization account, and the entries which are required to pass for closing of realization account are as follows. So please note down the next type of the entry, that is it for closing realization account after passing all those entries. So you know very well, जब भी हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करते हैं, सो एट लास्ट वी हैव अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, just like a revaluation account. And such profit on realization account and the loss on realization account must be distributed or borne by the old partners in their old ratio. So there are two cases which are related to the realization account, closing of the realization account. First, when realization account disclose profit, it means जब realization account क्या दिखाता है कि profit हुआ है. In this situation, the profit on realization must be transferred to partners capital account in their old ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इसमें कोई न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है तो कोई भी ओल्ड या न्यू रेशियो नहीं होता, इसमें एक ही पीएसआर गिवन होता है. अगर गिवन होता है वो पीएसआर होता है, नहीं होता है तो हम लोग इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड सेकंड केस व्हिच आर रिलेटेड टू द फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट इज व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोज लॉस, यानी जब रियलाइजेशन अकाउंट क्या दिखाता है कि लॉस हुआ है. इस सिचुएशन में द जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट in their PSR. So these are the two cases which are related to the foreclosing realization account. So these are the journal entry which are related to the realization account for closing of assets, closing of liabilities accounts, payment of external liabilities and realization of the assets. So after that, with the help of these entry,
let's we prepare the realization account. So let's we see that how we will prepare the realization account without passing in journal entry. So please see it very carefully how we will prepare the realization account. Realization account at the time of the dissolution of the partnership firm will be prepared are as follows. The format is particulars amount. Okay. So this is a basic format which are also followed at the time of the preparation of revaluation account. So you know very well when we prepare the realization account. So first of all we passed all the assets to the debit side of the realization account. So the first posting will be to sundry assets. But you know very well, in this type of the sundry assets, we could not transfer all the accumulated losses in deferred revenue expenditure to the realization account. And after that, you know very well, if any provision create against any assets like investment fluctuation fund, like provision for depreciation, provision for doubtful debts, it was also transferred to the credit side of the realization account. So the second posting in the realization account is by provision on any assets. Okay, at their book value. The third point which are related to the closing of the liabilities account is that for transferring external liabilities. So it will be transferred to the credit side of the realization account at their book value. प्लस यू नो वेरी वेल जब हम सन्ड्री लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वी एक्सक्लूड ऑल द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स. सो सन्ड्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल हम अपनी एसेट्स को रियलाइज करते हैं. द थर्ड पॉइंट, जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो या तो एसेट्स बैंक और कैश में रियलाइज होती है या तो एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है. सो रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स की पोस्टिंग क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है एंड द पोस्टिंग इज बाय बैंक और कैश, अगर किसी एसेट्स को आपने कैश या बैंक में रियलाइज किया है, एंड बाय पार्टनर्स कैपिटल इफ एनी एसेट्स टेक ओवर बाय एनी पार्टनर. इन द अदर साइड इफ एनी लायबिलिटीज पेड, अगर हम किसी लायबिलिटी को बैंक या कैश में पे करते हैं, सो पोस्टिंग इन द रिलेशन अकाउंट इज टू बैंक और कैश इन द डेबिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट. और अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी पोस्टिंग होती है टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से हम उसको मैच करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, thereafter we recording the realization expense, and you know very well there are lots of cases related to the realization expense. या तो फर्म पे करेगी या तो पार्टनर्स पे करेगा, या फर्म पार्टनर्स को एक सर्टेन रेम्यूनरेशन देगी, उस केस में पार्टनर पे करे या पार्टनर ना पे करे. तो बेसिकली दो ही पोस्टिंग हो सकती है रियलाइजेशन अकाउंट में, या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम बैंक या कैश में पे करेंगे या तो पार्टनर्स उसे पे करेगा, पार्टनर्स को पे करेंगे, पार्टनर्स को एक लमसम अमाउंट दे देंगे और वो क्या करेगा, सारी चीजें पे ऑफ करेगा. सो ये बेसिक ट्रांसफर है, बेसिक प्रिपरेशन ऑफ द रिलेशन अकाउंट है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट वी कैन इजीली प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्रीज. ओके, सो आफ्टर ट्रांसफरिंग द एसेट्स, after transferring the liabilities to the relation account, and after realize the assets, and after payment of the external liabilities, and after recording the relation expense at the time of the dissolution of the partnership firm, at last we close off the relation account. या तो रिलेशन पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसे डेबिट में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है. सो अगर प्रॉफिट है,
So to partners capital, profit on realization, और अगर लॉस है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, उसको हम बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो ये आपका एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का एट द टाइम ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर कॉपी प्रॉपरली and thereafter we will move to the next topic of this chapter. So after completing all the entries related to the realization account at the time of the dissolution of partnership firm as well as the format of realization account, let's we move to the important adjustments related to the realization account which are related to the workman compensation reserve. So please note down in your copy the accounting treatment of workman compensation reserve on dissolution of partnership firm. Accounting treatment of workman compensation reserve on dissolution of partnership firm। यानी जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म खत्म होती है, तो सिचुएशन में हम कैसे वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सी दैट द केस नंबर 1 which are related to the accounting treatment of workman compensation reserve on dissolution of partnership firm is if there is no claim, if there is no claim against WCR, यानी जब किसी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम वर्किंग नोट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं होता, उस सिचुएशन में वही एंट्री करते हैं। आपको पता है जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर में करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल है, यानी वो रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अपने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। दिस इज एन केस 1। सेकेंड केस इज व्हेन claim is less than amount of workman compensation reserve। जब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 हो लेकिन क्लेम आपका 50,000 से कम हो, तो ये एक रियलाइजेशन पे प्रॉफिट है, यानी आपके पास रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। सो इस सिचुएशन में इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए आपको ये पॉइंट एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बताना जरूरी था कि जनरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई क्लेम को लेकर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होता है तो वो अफेक्ट करता है रियलाइजेशन अकाउंट। सो अगर क्लेम कम है तो मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और क्लेम सिर्फ 40,000 है, इसका मतलब है कि आपको कम से कम क्लेम देना है। इसका मतलब जो क्लेम है उससे आप रियलाइजेशन अकाउंट से डील करेंगे, यानी यहां टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहां क्लेम अमाउंट और फिर जो बैलेंस है वैल्यू बचेगी उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि मान लीजिए क्लेम 50,000, रिजर्व 50,000 है, क्लेम 40,000 है, तो एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन 40,000 एंड टू पार्टनर्स कैपिटल उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट 10,000। तो यानी कि जितना भी क्लेम आपका बनता है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जितना भी क्लेम बनता है इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपका क्लेम आपके
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर। सो थर्ड विल बी व्हेन क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब आपका क्लेम आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है, इसका मतलब पार्टनर्स को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी जनरली हम ये सोचते थे कि स्पेसिफिक रिजर्व जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अगर कोई क्लेम है तो वो क्लेम को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यानी यहां पार्टनर्स के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, टोटल अमाउंट पूरा क्लेम हो गया। फोर्थ केस क्या हो सकता है, जब आपका क्लेम ज्यादा हो और वैल्यू जो रियलाइजेशन की वो कम हो। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका क्लेम रिजर्व है 20,000 और क्लेम है 25,000, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है, इन द सिचुएशन नंबर डी, when या if claim is more than WCR, जब आपका क्लेम ज्यादा हो WCR कम हो, तो यहां पर आपको क्या करना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा का पूरा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट रिजर्व नहीं है, तो पूरा का पूरा पहले रिजर्व कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, तो ये तो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है। यानी अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लेम है नहीं, इसलिए आपने पूरा पूरा पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। यहाँ पे क्लेम है जो कि WCR से कम है, यहाँ पे क्लेम WCR के बराबर है, यहाँ पे क्लेम WCR से ज्यादा है। तो एंट्री नंबर ए में तो कोई क्लेम ही नहीं है, लेकिन B, C, D में क्लेम है, तो उसकी एक एडिशनल एंट्री पास होती है, वो ध्यान रखिएगा। एक एंट्री और पास होती है, दैट इज एन पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि सिर्फ अप्लाई होगी कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर सी एंड कंडीशन नंबर डी, जिसको लेकर काफी स्टूडेंट्स कम रहते हैं कि सर बेसिकली अगर आप सी और डी को देखिए तो सेम एंट्री पास होगी। ठीक है, तो आप यहां पर डिफरेंस क्या हुआ सर कि हमारा क्लेम बराबर भी है, क्लेम ज्यादा भी है, तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ही होगा जब आप क्लेम का पेमेंट करेंगे, क्योंकि कंडीशन नंबर ए में कोई क्लेम ही नहीं है, इसलिए आपको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंडीशन नंबर बी, सी, डी में आप एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। बात अंतर ये है कि आप क्लेम की वैल्यू WCR से कम है, इसलिए पैसा पार्टनर्स कैपिटल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ क्लेम बराबर है WCR से, इसके बाद कंपनी का सफिशिएंट रिजर्व है कि वो पे कर सकती है। यहाँ पे कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व नहीं है, तो वो अपने पॉकेट से देगी, तो इसकी एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। यानी आपको A, B, C, D चारों केस में आपको देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में क्लेम कैसा है। अगर कंडीशन ए है तो वहां पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं है। लेकिन कंडीशन में बी, सी, डी में आपने क्लेम किया, ये देखिए यहां आपने क्लेम क्रिएट किया है, आपको क्लेम पे करना है, तो सिचुएशन में आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी इन कंडीशन नंबर बी, सी, डी में, दैट इज एन पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि अब कोई न्यू बैलेंस शीट बनेगी नहीं, तो सिचुएशन में एक एंट्री पास होगी लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि लायबिलिटी का पेमेंट करना मस्ट होता है, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे ना। तो एक एंट्री और पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और किस अमाउंट से पास होगी? क्लेम अमाउंट से। क्लेम कम हो चाहे बराबर हो चाहे ज्यादा हो, आपने क्लेम पे किया। यही दूसरी एंट्री आपकी जो है वो डिफरेंशिएट क्रिएट कर रही है अमंग बी, सी, डी में। सो प्लीज नोट डाउन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म which are different from the admission, retirement and change in PSR chapters. Okay, so
after discussing a lots of the journal entries related to the realization account and the format of the realization account, as well as the accounting treatment of workman compensation reserve on dissolution of partnership firm, let's me move to the second account which are also prepared at the time of the dissolution of partnership firm, that is a partners loan account, and number third is loan by firm to पार्टनर अकाउंट। और आपको पता है पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो चाहे फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो, इन दोनों का सेटलमेंट एक स्पेसिफिक अकाउंट से किया जाता है। सो नंबर सेकेंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। So you know very well, when any partners takes a loan from the firm, okay, if any firm takes a loan by the partner, sorry for that, partners loan account means when firm takes a loan from the firm. Now when firm takes a loan from the partner, loan by partner to firm, यानी फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर्स, इसका मतलब फर्म को पे करना है। तो पे करने के लिए क्या करेगा, इस सिचुएशन में द एंट्री विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। Number third, loan by firm, loan by firm to partner, मतलब लोन गिवन बाय पार्टनर, यहां गिवन लगा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां लोन गिवन किया फर्म ने पार्टनर्स, यानी यहां पर अपोजिट हो रहा है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और यहाँ ने पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से। इसका मतलब जो उल्टा पेमेंट करेगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को, एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो जनरल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट टू लोन टू पार्टनर। ओके, so after preparation realization account and after prepared partners loan account, after prepare loan to partner account, thereafter we prepared partners capital account and calculate net amount, कितना अमाउंट सारा काम करने के बाद हमें पे करना है पार्टनर्स को। सो फोर्थ अकाउंट इज क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, व्हेन वी क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो देयर आर बेसिकली टू केसेस विल बी अराइजेस। द फर्स्ट केस, एज यू नो वेरी वेल, व्हेन अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश, यानी फर्म को पैसा कम पड़ गया डिसोल्यूशन के टाइम और पार्टनर को पैसा लेकर आना पड़ेगा। It means when first case, when partner is required Q required to bring in cash to clear off his debit balance, यानी जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो नेगेटिव में आ सकती है, यानी उसका क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, यानी फर्म के पास इतने ज्यादा लॉसेस हैं, फर्म के पास इतनी सारी माइनस बैलेंस है कि अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स पैसा लेकर आएगा, उसकी जनरल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकंड केस बनता है इससे रिलेटेड व्हेन पार्टनर्स पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के पास सफिशिएंट पैसा है, यानी उनका डेबिट बैलेंस नहीं है, उनका क्रेडिट बैलेंस है। व्हेन अ पार्टनर इज पेड the credit balance of his account, यानी जब हमें पार्टनर को पे करना होता है, क्योंकि उसका यहाँ तो उसका डेबिट बैलेंस था, तो पार्टनर्स को सफिशिएंट पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है, आउटसाइडर को पे ऑफ करना है, तो उसकी जो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to cash or bank account. So this is all about the closing of all the assets, liabilities account, reserves account, accumulated profit and losses, specific reserves account, partners loan account, loan to partners account, partners capital account at the time of the dissolution of partnership firm. And you can see that जब भी dissolution होता है उस situation में हम क्या करते हैं, सारी assets, liabilities, सारे accounts को हम क्या करते हैं, close करते हैं, assets को sold out करते हैं, external liabilities को pay off करते हैं, partners के loan account को pay off करते हैं, partners को अगर loan दिया है तो उससे पैसा return करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज ऑफ करते हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स पैसा लेकर आते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो पैसा लेकर जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल सर, एक अकाउंट और बनता है बैंक और कैश अकाउंट, उसका क्या करते हैं? सो बैंक अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट इन दिस चैप्टर। आफ्टर प्रिपरेशन द रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन टू पार्टनर्स अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, when we prepare the cash or bank account at the end of the dissolution of the partnership firm, it must be total equal total। मतलब कि जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हमेशा याद रखिएगा कैश और बैंक अकाउंट जब आप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक इक्वल आता है, जो ये शो करता है कि जितना पैसा फर्म के पास था आया, जितना पैसा पे ऑफ हुआ, उसके बाद फर्म के पास कोई कैश और बैंक बैलेंस नहीं बचा, क्योंकि हमने सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सारी एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया, पार्टनर्स लोन से पैसा ले लिया, पार्टनर्स को लोन दिया था तो उसको दे दिया, और पार्टनर्स के कैपिटल को पे ऑफ कर दिया, यानी फर्म अब खत्म हो चुकी है, फर्म के पास कोई बैलेंस नहीं बचा है। इट मींस, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि when we prepared a cash or bank account at the time of the dissolution of partnership firm, it must be equal, its total must be equal, yani the debit side of the bank account and the credit side of the total of the debit side of the bank account and the total of the credit side of the bank account must be equal। अगर वो equal नहीं आ रहा है, it means आपने कहीं ना कहीं mistake की है। So please note down all these things in your copy properly। So in today's video we already completed a lots of the theoretical concept related to the chapter number 3, chapter number 6, that is on dissolution of partnership firm, and we can see that which type of the journal entry must be passed at the time of the dissolution of partnership firm, related to the relation account, related to the partners loan account, related to the loan to partners account, related to the partners capital account, and we also know about this at the time of the dissolution of partnership firm. We can see that after preparation all the ledger account which are required at the time of the dissolution of firm, when we prepared cash or bank account, the debit side of the cash or bank account and the credit side of the total of the credit side of the cash or bank account must be equal। So in today's video
I hope today we cleared all the things very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care. And I request you to each and every students, please note down all these notes in your copy properly, because this notes will helpful to understand the concepts, the accounting treatment at the time of the dissolution of partnership form. Thank you. Bye.